Hi, good morning. Good morning, everyone. You all are welcome to my channel Gyan Guru for computer learning. How are you, my dears? I hope you all are well at your home with the members of your family. मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सारे स्टूडेंट्स जहाँ भी हैं सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे. Okay, now come to the point. This video is going to be dedicated for students of class 9th. All those students who are studying in any CBSE affiliated school may be benefited, may get benefit from this video. Okay. Suppose if you are intending to learn something, suppose you want to learn something in computer. Okay. So in the previous class, previous discussion, okay, in the previous class, what did we discuss? What did we discuss? Previous session was based on what? Introduction to spreadsheet. क्लियर? पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्प्रेडशीट क्या है, सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा था. ओके, उसके बाद क्या पढ़ा था? हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखा था मैंने उसका, राइट. हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ स्प्रेडशीट, डेवलपमेंट of a spreadsheet. I'm not going to discuss these topics again. Okay, ये पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था फीचर्स ऑफ स्प्रेडशीट. ओके, फीचर्स ऑफ स्प्रेडशीट. क्लियर? नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था, ओ माय गॉड, all those topics were covered in a single class. So that was a very interesting and very energetic class I attended you in the previous session. Okay, and I also stated you how to open the spreadsheet. Clear? So all those things were discussed in the previous session. Okay, my dear students, I know you all are studying at your home. Some of you are coming to school also. But those students who are not attending the class may get suffer. Okay. So this video is not only helpful to those students who are coming to school, but it is helpful for every student of India, whoever is studying in any CBSE affiliated school. Okay. So this was the discussion point that held in the previous session. Okay, now I am going to discuss, now I am going to learn, today we are going to learn, okay, the most important fact that we must know about spreadsheet. Okay, so what are that facts? Okay, so write about facts about spreadsheet. Okay, facts about spreadsheet. आप सभी आदमी इस फैक्ट्स को जाने, एंड आई होप these are very important points about spreadsheet, and these are basically asked by the examiners of competition. Okay, जो कम्पिटिटिव एग्जाम अटेंड करते हैं उनके लिए तो कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण है.
इट मे बी दैट आप ये हो सकता है कि भाई आपके लिए ये क्वेश्चन आए ना आए, बट लेकिन सपोज इन कमिंग फ्यूचर when you are going to attend any competitive exam, definitely one or two questions may be from this fact. Okay, so now come to the point. First point is that we get we get 3 seats default up to the version of office, up to the version of office 2007. Okay, clear? We get 3 seats default up to up to up to the version of office 2007, अर्थात जो ऑफिस की जो वर्जन है 2007, हम लोगों को उसमें नंबर ऑफ सीट्स जो मिलते हैं वो 3 मिलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम ऑफिस 2010 and its onward version only one seat is present. ओके, गॉट इट. मतलब क्या कहा कि ऑफिस 2010 या इसके बाद के जो भी वर्जन्स आए हैं उसमें नंबर ऑफ सीट्स कितने मिलेंगे आपको? ओनली 1 मिलेंगे. क्लियर? वी क्लियर अबाउट इट. नेक्स्ट, column name starts with A. Column name starts with A. Okay, column name starts with A and ends at XFD. Correct? That is the last column name is what? XFD. Clear? Got it? मतलब मैंने बताया स्प्रेडशीट में कॉलम का जो नाम होता है, आप लोगों ने देखा होगा वर्टिकल सेक्शन जो सीट का होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं. मैं इसके बाद आपको जस्ट स्प्रेडशीट पे ही ले चलकर आपको बताऊंगा, सो दैट यू विल गेट मच मोर क्लैरिटी अबाउट इट. ओके, नाउ लिसन टू मी. तो मैंने क्या कहा कि कॉलम नेम कहाँ से शुरू होता है? ए से शुरू होता है और लास्ट कहाँ पे होगा? एक्सेप्ट होता है. ठीक है, लेकिन अगर प्रीवियस वर्जन की बात करें तो इज स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम था, लेकिन एंडिंग पॉइंट क्या था? वी आई. क्लियर है? तो एक्चुअली वहां पे 256 कॉलम ही हुआ करते थे, लेकिन अभी कॉलम की संख्या कितनी हो गई है? 16,384. ओके, 16,384. नेक्स्ट पॉइंट. ओके, नेक्स्ट, इफ वी काउंट व्हाट? if we count the number of columns numerically, अगर संख्यात्मक दृष्टि से हम उसे काउंट करते हैं, दैट इज कॉलम ए को क्या बोलेंगे? 1, बी को क्या बोलेंगे? 2. अगर इस तरह से न्यूमेरिकली उसको मैं काउंट करूं तो एक्सएफडी की संख्या कितनी होगी? ओके, न्यूमेरिकली
we get 16,384 columns. If we count the number of columns, we get 16,384. ओके, तो हम लोग को कितनी संख्या मिलती है? 16,384. एनी डाउट? नेक्स्ट पॉइंट, there are 10,48,576 rows in a sheet. ओके, अब इसमें बताया क्या, तो रो की संख्या कितनी होती है? कितनी? 10,48,576 एक सीट में. बी क्लियर अबाउट इट. नाउ you people can imagine how much large the expansion of your spreadsheet is. Okay, a single sheet deserves 16,384 columns and 10,48,576 rows. Now you can imagine, right now no any media is available to display this large amount of shape of spreadsheet. Okay, so I hope you can just imagine how much expanded area of a sheet is there. Okay, next, come to the next point. Next point is that is very, very important. We must know that to display current date, I mean system date, whatever the date is happening in your computer system, current date. तो किसका current date? तो system का. Okay, system का current date. To display current date, press. Very, very important question. Okay, आप लोगों ने देखा होगा कंट्रोल बटन होता है प्लस ये सेमीकोलन. ठीक है, कंट्रोल के साथ जब आप सेमीकोलन प्रेस करते हैं तो क्या हुआ, आप देखेंगे आपके स्प्रेडशीट में करेंट डेट आ जाता है. क्या आ जाता है? डेट आ जाता है उसमें. और ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सब लोगों को पूछा जाता है, प्रायः कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है. तो बी केयरफुल अबाउट इट और सभी आदमी ध्यान से इसे नोट करेंगे. ओके, नेक्स्ट point is that each file of Excel is called, right, workbook. Got it? And each page of a workbook is called वर्कशीट. क्लियर? सिंपल सी बात है कि आप स्प्रेडशीट आई मीन एक्सेल को आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे टॉप पे क्या लिखा रहता है? बुक लिखा रहता है. व्हाट इज दैट? इट मींस इसके प्रत्येक फाइल को हम लोग क्या बोलते हैं? बुक बोलते हैं या वर्कबुक बोलते हैं. सिंपली यू कैन से बुक और वर्कबुक, बुक और वर्कबुक. ओके, नो प्रॉब्लम, बोथ आर सेम, बुक और वर्कबुक. लेकिन ये वर्कबुक मैंने आपको पहले ही बताया, फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया था. यू कैन नाउ सी हियर, नाउ जस्ट सी हियर. यहाँ जो मैंने आपको बताया था कि हम लोग 3 शीट्स, हम लोग को जब भी कोई एक्सेल का फाइल ओपन करते हैं हम लोग को 3 शीट्स एक बार में मिलता है. इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसमें नंबर ऑफ शीट की संख्या घटा सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं. नो प्रॉब्लम. ओके, फिर ये बुक है. अब बुक में हर एक क्या होगा, इसका हर एक पेज होता है. ओके, बुक का अपना क्या होगा?
पेज होगा एंड each page of a workbook is called worksheet. और वर्कशीट का दूसरा नाम होता है, you can say simply sheet, you can say electronic sheet. Okay, electronic sheet. Got it? तो ये है क्या, और इसका दूसरा नाम आपने अभी जस्ट बताया, स्प्रेड शीट, स्प्रेडशीट. गॉट इट? तो स्प्रेडशीट यहाँ की बात होती है ना. एक्सेल के हर एक फाइल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेल के हर एक फाइल को हम लोग बुक बोलें या वर्कबुक बोलें, लेकिन इसका जो हर एक पेज होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सीट कहते हैं या वर्कशीट कहते हैं. क्लियर है? या स्प्रेडशीट कहते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक शीट कहते हैं. गॉट इट? नेक्स्ट. आई होप इट्स टू मच क्लियर टू एवरीवन. अंडरस्टूड? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Others, Aryan, Vivek, Anavadya. Okay, getting my points. Okay, thank you. Next. So next point is that name box displays the address of a cell. Okay, while its content is displayed in formula bar. Got it? मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो पढ़ाई करते हैं, यहाँ जो देख पा रहे हैं कि कोई भी स्प्रेडशीट जब होता है, स्प्रेडशीट उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स होता है, और प्रत्येक सेल का क्या होता है, यूनिक एड्रेस होता है. क्लियर है? सेल एड्रेसिंग टेक्निक हम लोग जानते हैं ना भाई. वेरी सिंपल. सेल एड्रेसिंग टेक्निक हमारा है कॉलम नेम फॉलोड बाय रो नंबर. ठीक है? तो पहले कॉलम का नाम हम लोग उसमें नोट करते हैं, फिर रो का नंबर डाल देते हैं, तो वो सेल का क्या होता है, एड्रेस हो जाता है हमारा. गॉट इट? तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड सेल एड्रेसिंग. तो सेल एड्रेसिंग जो होता है बहुत सिंपल टेक्निक है, और इसे देख सकते हैं हम लोग. तो कहा क्या कि सेल का एड्रेस कहाँ डिस्प्ले करेगा. एक्चुअली अगर हम लोग किसी सेल की मैं कर्सर अपना रखते हैं, पॉइंटर अपना पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो हमारे सेल का एड्रेस कहाँ डिस्प्ले करेगा. कैन एनीवन गेस? यस, नेम बॉक्स में. कहाँ डिस्प्ले करेगा? नेम बॉक्स डिस्प्लेज द एड्रेस ऑफ सेल ऑफ एक्टिव, आई मीन ऑफ एक्टिव और करंट सेल. करंट सेल मीन्स व्हाट? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है वो नहीं भाई. लिसन टू मी मैन. करंट उसको नहीं बोलते. करंट मतलब प्रेजेंट. करंट मीन्स व्हाट? प्रेजेंट. जहाँ पर कर्सर आपका प्रेजेंट होगा उसको बोला जाएगा. क्लियर? यस. एक्टिव और करंट सेल व्हाइल इट्स कंटेंट इज डिस्प्लेड इन फॉर्मूला बार. लेकिन उस सेल में जो लिखा गया, जो भी कंटेंट लिखा जाएगा, ठीक है, उसको कहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा? उसको फॉर्मूला बार में डिस्प्ले किया जाएगा. क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट इज दैट. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. प्रेस F2 फंक्शन की. प्रेस F2 फंक्शन की टू एडिट सेल कंटेंट. गॉट इट? मीन्स व्हाट? क्या हुआ भाई? मैंने क्या बताया? अरे गुरुजी क्या बोल दिए हमने? कुछ समझ में नहीं आया? वेरी गुड. बहुत सिंपल चीज है भाई, ध्यान से समझे. मैंने कहा क्या कि आप सेल में कुछ भी लिख दिया, नो प्रॉब्लम, बट उसमें अगर किसी प्रकार के आपको मॉडिफिकेशन करना है, मॉडिफिकेशन मतलब चेंजेस करने हैं, तो क्या होगा?
अगर आप उसमें कुछ लिखने जाएंगे तो डिलीट हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो डिलीट हो जाएगा, बट हम उसमें चेंज करना चाहते हैं, उसे डिलीट करना नहीं चाहते, उसे मिटाना नहीं चाहता, तो क्या करना होगा, तो वहां पे कर्सर क्लिक करके और F2 बटन दबा दीजिए। ओके, जैसे F2 फंक्शन की दबाएंगे कर्सर वहां पे ब्लिंक करने लगे और फिर आप नेसेसरी चेंजेस कर लीजिए, एंटर की हिट करके फिर बाहर निकल जाइए। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट, प्रेस F12। ओके, F12 टू डू सेव एज, ठीक है। अब सेव एज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेव एज करने के लिए हम लोग कौन से फंक्शन की प्रेस करते हैं, F12, गॉट इट, F12। ओके, नेक्स्ट, नाउ आई एम गोइंग टू रेज इट, डू यू हैव यू नोटेड इट, हैव यू नोटेड इट? ओके, now come to the point, I am going to erase it, be smart about it। ओके, नेक्स्ट, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि हम लोग जो फैक्ट्स पढ़ रहे थे स्प्रेडशीट के बारे में, वो हम लोगों को क्लियर है, समझ में आया सबको? ओके, चलिए अब इसका थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए। मैंने पिछले क्लास में जो बताया था वह स्प्रेडशीट कैसे ओपन करते हैं, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, विंडो बटन प्लस आर की प्रेस करते हैं, वहाँ पे क्या टाइप करते हैं, एक्सेल टाइप करते हैं। क्या टाइप करते हैं हम लोग, एक्सेल, ठीक है। और एक्सेल टाइप करने के बाद जब एंटर की हिट करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, हमारा स्प्रेडशीट ओपन हो जाता है। ओके, now I am inviting you on my new on my new window, and you can see right now you are present on a spreadsheet। Okay, now come to your new window and this is your spreadsheet। Look at here guys, सभी आदमी यहाँ ध्यान से देखें, what is this? This is your spreadsheet that I taught you in the previous class। Okay, क्लियर है, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। वही तो है, वेरी गुड, वेरी गुड, यस 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 श्योर, वही चैप्टर वही टॉपिक हम लोग ध्यान से देखें यहाँ। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, एंड व्हाट इज दैट पॉइंट, नाउ यू कैन सी व्हाट डिड आई से, मैंने क्या बताया आपको, ध्यान से देखिए, आई एम जूमिंग इट। ओके, सभी आदमी ध्यान से देखें, व्हाट इज दिस, यस गॉट इट, करेक्ट, दिस इज योर कॉलम ए। आई मीन हमने आपको जो बताया था, पहले ध्यान से देखें, मैं जो ऑफिस यूज कर रहा हूँ वो हमारा ऑफिस 2019 है। मैंने आपको पहले ही बताया, नाउ पॉइंट ओवर, नाउ फोकस योर कंसंट्रेशन हेयर, नाउ फोकस योर कंसंट्रेशन हेयर। ओके, सभी आदमी यहाँ ध्यान से देखे, मैंने बताया था कि हम लोग जो ऑफिस यूज करते हैं, ऑफिस 2000 मैं 19 यूज कर रहा हूँ, द लेटेस्ट वर्जन जो है वो है हमारा, ठीक है। तो हमें कितना सीट मिला है यहाँ पे, एक, नो मैटर, हम इसकी संख्या को चाहें तो बढ़ा सकते हैं। ओके, जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सीट आ जाएगा 2। क्लियर, देखिए सीट 2 आ गया, ठीक। तो इस तरह से हम इसकी संख्या चाहें तो घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। घटाने की बारी है, राइट क्लिक करो, ठीक है, और यहाँ से डिलीट कर दीजिए। क्लियर, तो इस तरह से सीट की संख्या बढ़ सकती है हमारी। तो ये क्या है हमारा, नाउ लुक एट हेयर, सभी आदमी ध्यान से देखें, तो ये क्या है, ये हमारा देखे ये है, मैंने बताया था कि कॉलम नेम की शुरुआत कहाँ से होती है, कॉलम नेम की शुरुआत कहाँ से होती है, ए से होती है। ए है, ये हमारा क्या है, बी है, ये हमारा क्या है, सी है। इस तरह से आप देखोगे कि आपके टीचर जो है आपको एबीसीडी पढ़ा रहे हैं, नहीं,
सर मैं आपको एबीसीडी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है, कॉलम नेम लिखा हुआ है हमारा, क्लियर है। और इसको मैंने कहा था कि अगर आपको लास्ट कॉलम में जाना हो तो देखिए यहाँ लास्ट कॉलम जो देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे देखिए ध्यान से, लास्ट कॉलम आपको क्या दिखाई देगा, लास्ट कॉलम जो आपको दिखाई दे रहा है वो है आपका क्या, एक्स एफ डी। क्या है आपका भाई, एक्स एफ डी, क्लियर। मतलब इसके बाद कोई कॉलम की संख्या नहीं बनी हुई है, गॉट इट, क्लियर ना। तो पहली बात क्लियर हुई कि हम लोगों को कितना सीट मिलता है, ऑफिस 2007 तक ही 3 मिलेगा ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब होता है ऑटोमेटिकली, है ना, जो एक बार ओपन करने पर डिस्प्ले करता है। दूसरी बात मैंने क्या बताई आपको कि कॉलम नेम की शुरुआत कहाँ से होती है, कॉलम नेम की शुरुआत कहाँ से होती है, तो ए से होती है। लास्ट कहाँ तक जाएगी कॉलम का नाम, ठीक है। तो ये कॉलम नेम लास्ट की इसका जो नेम होगा वो देखिए यहाँ पे एक्सएफडी लिखा हुआ है एक्सएफडी, इसके आगे कोई कॉलम नहीं है, करेक्ट। नेक्स्ट, फिर यहाँ से मैंने आपको बताया क्या कि कॉलम जो हमारा ए है, और यहाँ से जो हम अब देख पा रहे हैं हम सभी लोग कि कॉलम ए से लेकर कॉलम ए से लेकर जो हम लोग देख रहे हैं एक्सएफडी तक की जो यात्रा थी, यह कितने, अगर न्यूमेरिकली मैंने बताया था आपको कि अगर इसको न्यूमेरिकली काउंट करेंगे तो कितना होगा, 316,384 है टोटल होगा। लेकिन क्या ये बात सत्य है, हाँ या ना, हाँ या ना। हाउ कैन आई बिलीव ऑन यू, वे सर हाउ कैन आई बिलीव ऑन यू, मैं आप पे कैसे भरोसा कर लूँ, नो सर, आप मेरे पे क्यों भरोसा करेंगे, क्लियर है। मैं आपको भरोसा दिलाने के लिए कुछ प्रयत्न तो अवश्य कर सकता हूँ। देखिए अब मैं आपको उसको न्यूमेरिकली चेंज करके दिखा देता हूँ, जो कॉलम नेम दिखाई दे रहा था उसे मैं न्यूमेरिकली चेंज करके दिखा रहा हूँ। ओके, ओए लिसन टू मी मैन, व्हाट डिड हैपन हियर, क्या हो गया, जादू हो गई ना। जो एबीसीडी दिखाई दे रही थी, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको दिख रहा था वो किस में परिवर्तित हो गया, वो न्यूमेरिकल में परिवर्तित हो गया। ध्यान से देखे सभी आदमी, हो गया। So this is your last column. This is your last column. Okay. Now concentrate over here, man. Concentrate over here. Okay. This is your last column number. You can also count it. No need to count it. We have the option to change it. Okay. हम लोग के पास ऑप्शन है, इसको चेंज करके देख लिया ना कि अल्फाबेट को मैंने किस में चेंज कर दिया, न्यूमेरिकली चेंज कर दिया, तो देख लीजिए यहाँ पे आ गया हम लोग के लिए, क्लियर। नाउ आई एम गोइंग टू रिवर्ट इट अगेन, मैं इसको पुनः फिर से परिवर्तित करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखे सभी लोग, ओके। आई होप इट्स वेरी सिंपल स्टेप टू चेंज इट, ओके। नाउ जस्ट सी, it's in your alphabetical order again, okay, okay। Next point is that, what did I say you, just say, just I'm writing here Ram, okay। You can say, you can see two things, you can see two things here. What do you want to explain you, just focus over here, just focus over here. Now concentrate over here, look at here, this is your name box, clear. This is what, your name box where your current cell address is displayed, B2. Okay, now you can see here, this is your column B, okay। And so firstly look at your column name, okay, and then look at towards row number, got it। so column name followed by row number gives the cell address, and this content, look at here, this content is being displayed here, this is called what, formula bar, this is called formula bar, okay। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मूला बार कहते हैं, जहां पे मेरा कंटेंट डिस्प्ले कर रहा है, क्लियर। am I clear about it, am I audible to everyone or not, yes, correct, okay। so what is this, the next point is that you I stated, but I want to write Ramu here, oh my god, मैं इसमें रामू लिखना चाहता हूँ लेकिन ये राम लिखा गया। हमें क्या करना है, अगर मैं कुछ भी लिखने जाऊंगा तो ये इरेज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। मैंने क्या कहा था, F2 फंक्शन की दबाई है, F2 दबाया, वो पहले से लिखा हुआ है, अब देखिए राम की जगह रामू हो गया हमारा ये, ठीक है, हो गया ना रामू,
Okay, I'm just going to make you clear. Okay, now look at here, Ramu is there. Got it? Okay, clear? तो रामू आ गया आपके सामने। तो इस तरह से मैंने क्या देखा कि ये क्या है। अब मैंने इसको भी सेव नहीं किया। नाउ लुक एट हियर, आई वांट टू ड्रैग योर, आई वांट टू विथड्रॉ योर अटेंशन हियर। ओके, नाउ लुक एट हियर, सभी आदमी यहाँ पे ध्यान से देखें। बहुत माइन्यूट चीजें हैं। मैंने क्या बताया था कि हम लोग एक्सेल के फाइल को क्या बोलते हैं, बुक बोलते हैं। लुक एट हियर मैन, बुक वन। फिर बोले कि वन क्यों बोला इसको है, क्योंकि क्योंकि ये पहली बार ओपन किया ना मैंने, इसलिए बुक वन दिखाई दे रहा है आपको। ओके, दूसरी बार करूंगा तो बुक टू दिखाई देगा आपको। क्लियर? गॉट इट? तो इसलिए अभी इसको जब मैं सेव करूंगा तो सेव करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल एस। ठीक है, आप भी प्रेस करेंगे तो कंट्रोल एस जब आप प्रेस करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि आपको सेव करने का ऑप्शन आ जाता है। कंट्रोल एस प्रेस करिए है, तो यहाँ पे बोलेगा क्या कि भाई सेव करना है। क्लियर? तो हमको यहाँ पे सेव नहीं करना तो नहीं करेंगे। जैसे नाम आप सेव करोगे यहाँ पे चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये क्या था हमारा इंट्रोडक्शन। हमने आपको बताया था कि लास्ट रो का नंबर कितना होता है। लास्ट रो का नंबर मैंने बताया था पिछले क्लास में। लुक एट हेयर, 10,48,576। लुक एट हेयर, लुक एट हेयर मैन। सभी आदमी यहाँ देखिए, कंसंट्रेट ओवर हेयर, कंसंट्रेट ओवर हेयर। नो फर्दर रो इज देयर बियॉन्ड दिस रो number. Okay, beyond this row number no any row is there. Okay, इसके बाद कोई रो की संख्या नहीं है। क्लियर ना? तो लास्ट रो का नंबर भी हम लोगों ने देख लिया, 10,48,576। एनी डाउट? एनी डाउट मैन? अनवद्या, आदर्श, विवेक, am I clear? Clear to anyone? Clear to everyone or no one? You can say confirm me man, confirm me. Okay, so this is facts and that I stated you, that I taught you in this session. Okay, so in the next class, we will have a deep discussion about the navigations also. Okay, so keep watching this video and note it down, note it down. It will be fruitful for you, it will be helpful for you. Okay, and for next, getting next update, just subscribe this channel. You will get the update whatever I am doing here. Okay, and you will maintain your sequence there. If this video is not helpful to you, then please unsubscribe it, no problem. I am not going to care about it. Okay, मुझे इसके बारे में कोई चिंता नहीं कि आप सब्सक्राइब करिए। आई एम थिंकिंग और एवरीथिंग अराउंड यू। ओके, मैं आपके लिए चिंता कर रहा हूँ और आप सभी आदमी इसे पढ़ें और इसे नोट्स के रूप में तैयार करें। मैं समझता हूँ दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, अगर आप कर सकते हैं तो इसको सिर्फ याद करके देखें और अगली क्लास में जब मैं आपको अटेंड करूंगा तो आप मुझे वहां से रिप्लाई देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर एवरीवन।